We were at this point yesterday, and we were discussing about the structure of our linear arrays. And what we tried to do yesterday was turning a linear structure into a non-linear structure called as tree. And you will say that your tree was exactly replicating the structure of your linear structure as well as a list. The only difference was that that was looking like a tree, but internally they were all looking like in a singular list. So our task is to basically convert that unordered list into an ordered list so that we may sort them. We may arrange all the elements in a particular order. The benefit of converting that linear structure into the non-linear structure was that we were able to see the relation between all the elements in the form of parent and child. So we were seeing that some of the elements in the given list, they were looking like parents and some of them were as child. And in fact, the child were also the parents of some new ones. So how could we actually see this particular structure? And what we tried to organize that particular tree was into a particular shape. And that shape was, I called it as a maximum heap. Today we shall also see that repetition of how to convert. If somebody of you missed yesterday, you may see it again how we actually structure into a max heap. And we'll also see how this structure can be converted into a minimum heap. And then we will also see quicksort today. So we shall be covering these two very important sorting mechanisms that we can apply over the list. So let us see, and let us see on the board. In fact, so we were having 15. Let me write all the elements here. We were having 15, 27, 9, then 5, then 8, 6, 10, 2, 1, 8, 6, 10, 2, and 1. So this was a particular list which I actually planned to organize and order. So how will I see them? We assume that the first argument, the first element of this list is treated to be as the root of my tree, the first element of my tree. So how I organize it, we'll see that we had seen that first argument, if we put it on the root and take its two children as the next two elements, and then go to 9, it will be the left child of 20, 5 will be the right child of 20, 8 will be the left child of 7, and 6 will be the right child of 7, and then 10 will be the left child of 9, and 2 will be the right child of 9, and 1 will be the left child of 5, and the number of elements go finish. So this two lists are basically equivalent. If we see them, we can see them in a linear structure, we can see them in the non-linear structure as well. So we can see that all these elements can be traversed in this order. In fact, in this direction also. If you move from this, you can visit all the elements. So basically, I lost the path of like this. Let me just write it in this way. In fact, first 15, and then 20, then 7, and in fact we move on to 9 and 5 and 8 and 6, and then we move on to 10 and 2 and 1. So this will be the way of traversing as we have just placed them. And was one very important relation we had seen with the ith element of this particular tree, that every ith element has two children. The one children is 2i plus 1, and the another children is placed at 2i plus 2. In case we see that your first index starts from 0. So we had seen that the child can be found at 2i plus 1, and the right child can be found at 2i plus 2. Now, after this list has been done, this is called as a tree structure.
how do we convert that into a max heap? So in case we want to convert that into a max heap, what we do is we just visit all the elements from the last to the first one. And we see what, whether any element which is basically treated to be as a root is less than among all of its children, not all of, in fact, two children. So in case if it is less than, that means it needs to be changed with the bigger element out of the two children. Like if we just see that, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जब हम 1 पर आते हैं तो 1 का तो कोई चिल्ड्रन नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू इट. देन 2 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 10 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है. एंड 10 के बाद जब हम 6 पर जाते हैं, 6 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 8 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 5 का एक चिल्ड्रन है, एंड इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड बिकॉज द रूट इज ऑलरेडी बिगर देन 2 of its children. Then we come to 9. Then we get this element and we found that this is the one that is objecting the max heap condition. Max heap condition is that your root should be greater than your left as well as it should be greater than from your right child. So यहाँ पर हमें ऐसा element मिल जाता है जो छोटा है. So this 9 should be replaced by either this or this, which whatsoever is bigger than. So we know that this 10 will be replacing 9, and once this 10 will be replacing 9, that means 10 will be coming here, 9 will be coming here. After this root has been done in, then we move on to 9 के बाद 7. Now when we move on to 7, we also find that this is also objecting this condition that root is less than one of its children. इसको भी मार्क करके हम इसको भी रिप्लेस करते हैं. यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा. Once we move on to 20, this fulfills these two. This fulfills this max heap condition. Then we move on to 15. तब हमें पता लगता है कि 15 भी ऑब्जेक्ट कर रहा है. So we will replace 15 with 20 as well. So यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा. ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम हिपिफिकेशन बोलते हैं. ये कल हमने देखा था और हमने इसका प्रोग्राम भी बना लिया था कि हम यहाँ से यहाँ हर नोड को विजिट करते जाते हैं. जहां पर भी हमें रूट नोड अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से छोटा मिलता है तो हम उसे स्वैप कर देते हैं अपने से बिगर एलिमेंट के साथ, एंड इसको चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाते हैं. तो व्हाट वी कन्वर्ट एट द एंड इज, हमें जो लास्ट में मिलेगा वो कुछ ऐसा ट्री मिलेगा. 20 यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ठीक है, और यहाँ पर 15 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा, और 15 के बाद यहाँ पर हमें 10 मिलेगा, और 10 के बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, ठीक है, और 15 के बाद यहाँ पर 5, और उसके लेफ्ट में 1, एंड 8 के लेफ्ट में 7, एंड राइट में 6. So this will be the tree that we will be constructing after heapification. So once this max heap is done, ठीक है, उसके बाद हम sorting process देखते हैं क्या करना है हमें. ठीक है, यहाँ तक हमने कल किया था, इसको मैं दोबारा से आपको explain कर देता हूँ कोड. What we had seen yesterday. So what we did, we created a function in which we passed on the whole list, and this n was basically your length of the list that we'll be passing. So we have passed like length of list 1, that is our input list, और I है basically वो node जहाँ जिसको हमने जिस node को हम check कर रहे हैं. So we will be checking every node ना. So because n-1 से शुरू करना है हमने, last से जैसे मैंने आपको बताया, we'll be moving from last element. तो ये last element है length of array -1, right? n-1. This is n-1. This is your 0. So we'll be moving from n-1 to 0, and we'll be heapify each ith element. And what this heapification says कि जब ith element है हमारे पास, उसको हम assume कर लेते हैं largest कि वो largest है, और उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस ढूंढ लेते हैं, वो 2i+1 है. राइट चाइल्ड का एड्रेस ढूंढ लेते हैं, 2i+2 है, और बस फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या ith एलिमेंट अपने लेफ्ट चाइल्ड से छोटा है. अगर ith एलिमेंट लेफ्ट चाइल्ड से छोटा है तो हम लार्जेस्ट लेफ्ट को बना देते हैं. तो हमारा लेफ्ट से कंपैरिजन हो गया ith का. फिर हम राइट से कंपैरिजन करते हैं. राइट से कंपैरिजन उसका करते हैं जो लार्जेस्ट निकला दोनों में से, राइट? जो लार्जेस्ट निकला उसका राइट साइड से कंपैरिजन होना है, लेफ्ट और
ith एलिमेंट में से जो लार्जेस्ट है दैट विल बी कंपेयर्ड विद योर राइट। अगर वो भी छोटा है दैट मीन्स राइट लार्जेस्ट है, तो हमने लार्जेस्ट को राइट बना दिया। तो ये r जो निकला या l जो निकला है ये इंडेक्स है हमारा उस एलिमेंट का जो तीनों नोड्स में से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारा ये 9th वाला ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारा इससे बड़ा मिला था, राइट। ये ith है और ये lth नोड है, सो दिस वाज लेस देन दिस वन, सो वी स्वैप्ड दी, ये लार्जेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम इससे कंपेयर करेंगे राइट साइड से, तो हमें पता चलेगा तो राइट से ऑलरेडी बड़ा है, विल नॉट स्वैप। सो ये स्वैपिंग सिर्फ एक ही बार होगी, ठीक है, 2 बार नहीं होगी। तो हम पहले लेफ्ट को कंपेयर कर रहे हैं फिर राइट को कंपेयर कर रहे हैं। सो वंस इट इज डन, स्वैपिंग हो गई अगर हमारी, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी हिपिफाई। ये जो हमने फंक्शन को दोबारा कॉल किया, व्हाट इज दिस, दिस इज आई नीड टू स्ट्रेस अपॉन, जो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी तरफ से रेज करेगा कि हम जब स्वैप कर देते हैं एलिमेंट्स को, सो व्हाई डू वी हिपिफाई अगेन। सो हिपिफिकेशन इज डन अगेन बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज ऑफ वन रीजन इज व्हाट, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहां पर थे, इसने ऑब्जेक्ट किया, तो यहां पर इसने देखा कि ये जो एलिमेंट है ये रूट वाला इससे छोटा है, तो वी नीड टू स्वैप, तो हमने 8 यहां पर कर दिया और 7 यहां पर लिख दिया। जब हम यहां पर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये था हमारा लार्जेस्ट, ये था LAR, ठीक है, ये L था, राइट, ये LAR एलिमेंट बन गया। अब अगर हमारा ये वाला एलिमेंट LAR है जो बड़ा बन चुका है, राइट, अब हमें क्या करना है, यहां पर 7 आ गया ना, तो इसको तो हमने, ये तो ऑलरेडी पता चल गया हमारा कि ये तो लार्जेस्ट है इन दोनों से, लेकिन अगर इसका कोई और नोड छोटा होता, अगर इसका कोई और नोड छोटा होता, इसका तो कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन अगर इसका चाइल्ड होता, वो कब केस में, जब हम यहां आएंगे। आप यहां देखो एक बार, फॉर एग्जांपल जब हमने 15 को 20 से कंपेयर किया था, तो हमने 20 ऊपर कर दिया, 20 यहां, 20 ऊपर 15 यहां पर कर दिया, लेकिन जब यहां 15 आएगा रिप्लेसमेंट के बाद, तो हमें क्या इसकी हिपिफिकेशन, क्या ये मैक्स कंडीशन इसकी चेक नहीं करनी पड़ेगी कि ये नोड भी अपनी चेंज होकर जो ऊपर से नीचे आया है ये भी मैक्स हीप की कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। सो अगर ये नहीं करता है तो इसके ऊपर भी हिपिफाई करना पड़ेगा, राइट। और जब ये अगर कंपैरिजन होगा, अगर ये चेंज हो जाएगा, तो फिर जो जिसको ये चेंज करेगा उसको भी चेक करना पड़ेगा। सो इट इज रिकर्सिव काइंड ऑफ ए प्रोसेस। सो अगर हम टॉप एलिमेंट से नीचे आ रहे हैं, अगर कभी भी स्वैप हो रहा है, तो जो टॉप एलिमेंट है वो तो सही जगह पहुंच गया, लेकिन जो नीचे वाला एलिमेंट है अगर वो नीचे वालों से बड़ा नहीं है, तो हमें इसको भी हिपिफाई करना पड़ेगा। आई होप यू एक्चुअली गेट इन कि जब हम टॉप एलिमेंट को किसी भी लेफ्ट या राइट से स्वैप कर देते हैं, तो नीचे वाला ऑर्डर भी अनस्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये 15 यहां आ जाता तो ये भी देखना पड़ता कि ये तो अब ऊपर से तो नीचे आ गया, ये तो डिसबैलेंस नहीं हो गया, right? So that's why what we are doing is we are calling this function again by passing LAR. LAR means जिस भी नोड को, LAR क्या है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो जो भी नोड लेफ्ट या राइट था जिसके साथ हमने रिप्लेस किया है ith एलिमेंट को, उस LAR को फिर से हिपिफाई करना है। So once we do this, तो आप देखेंगे अभी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके हर एलिमेंट को, जैसे हमने यहां से पकड़ेंगे, हर नोड को हम चेक कर रहे हैं। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि हम यहाँ से जैसे इस नोड को कंपेयर करते चल रहे हैं, जो भी नोड अपने आप के, जो भी नोड हिपिफिकेशन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, हम हर नोड को हिपिफाई करते हैं। एवरी नोड, इसको भी यहाँ से चलते हैं और हर नोड को हम हिपिफाई करते चलते हैं। ith is being hipified and hipification node process will be like this. So once it is hipified, so let me say आउटपुट आता है आपका ये, ठीक है। अब ये मैच करो, क्या ये बिल्कुल वैसा है या नहीं। तो ये जो नोड मैंने बनाया है, ये जो ट्री बनाया है, अगर मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा, 20, 15, 8, 10, 5, 7, 6, 9, 2, 1। तो यही है आपका 20 फर्स्ट में और 1 लास्ट में, 1, 2, 9, 6, 1, 2, 9, 6, and from left hand side 20, 15, 8, 10, 5, 7. So the same tree has been converted into a max heap tree.
एंड व्हाट हैपेंस इन द मैक्स हीप ट्री इज कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा अब मैक्स हीप में, मैक्स हीप बनने के बाद, सो दैट बिकम्स योर लार्जेस्ट एलिमेंट। ये हमें पता चल जाता है मैक्स हीप में जो रूट नोड है दैट इज द लार्जेस्ट वन। तो अगर ये लार्जेस्ट है तो हम क्या करते हैं, इसको लास्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देते हैं। सो स्वैप करने के बाद 1 इधर आ जाएगा और 20 यहां पर आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट हमारी बाकी बची है, ठीक है, ये जो 1 के बाद 1, 15, 8, 10, अब यहां तक लिस्ट को हम क्या करेंगे, वापस से हिपिफाई करेंगे। तो लास्ट एलिमेंट यहां पर आ गया, फिर हम इसको हिपिफाई करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें से जो लार्जेस्ट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। जैसे 15 आएगा तो हम फिर 15 को यहाँ इस एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे, तो अगली बार 2 एलिमेंट हमारे बच जाएंगे, फिर बाकी बची लिस्ट को हिपिफाई करेंगे। विल कीप ऑन डूइंग इट, विल कीप ऑन हिपिफाई द रेस्ट ऑफ द लिस्ट बाय पासिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। तो हम इस एलिमेंट को, 0th एलिमेंट को ith एलिमेंट जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करते चलेंगे आफ्टर हिपिफिकेशन। सो व्हाट आई डू इज कि मैं क्या करता हूं, अब मैं एक काम करूंगा कि मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं। ये तो हमने क्या किया, एक ही नोड को हिपिफाई कर लिया, ठीक है, हर एक नोड को हिपिफाई करते चले गए और यहां पर पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, विल चेक कि हमारे पास मैक्सिमम हीप ट्री एग्जैक्टली बना है या नहीं। तो वो ये वाला जो काम किया ना मैंने, दिस इज एग्जैक्टली योर मैक्सिमम हीप ट्री। ये तो हम हिपिफाई कर रहे हैं ith नोड को, सो लेट मी कॉल इट एज अनदर फंक्शन which builds my heap tree. Let me call this function as build max heap. ये क्या करता है, इसको हम एक लिस्ट पास कर दें, ठीक है, और जो कोड मैंने नीचे से हटाया वो यहां पर लिख देते। So this max heap build does what? It calls this heapify for each I. So once it is called for each I, and once this process will be ready, your list will be heapified. So let me call this function build max heap और इसमें हम लिस्ट को पास कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा अब काम हो गया। So this is your heapification done, ठीक है। तो अब अगर हमारा हिपिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, सो देन व्हाट वी डू इज वी विल बी कॉलिंग, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दिस इज डन, देन वी विल डू व्हाट, अब हम हीप सॉर्ट में अब हम जाते हैं अपना हीप सॉर्ट फंक्शन बनाते हैं। सो लेट अस कॉल क्रिएट अ हीप सॉर्ट फंक्शन। हीप सॉर्ट आपको मैंने बताया, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। यहाँ पर हमने एक गलती हो गई, यहाँ पर हमने माई लिस्ट पास करना है, दिस विल बी योर माई लिस्ट, राइट, और इसका भी आर्गुमेंट माई लिस्ट बनेगा। अब हम हीप सॉर्ट क्या करेगा, हीप सॉर्ट डज व्हाट, नाउ हीप सॉर्ट विल फर्स्ट, इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है, आफ्टर हिपिफिकेशन इज डन, मैक्स हीप हैज बीन डन, अब हम क्या करेंगे, हीप सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। वंस हीप, इसको हम सॉर्टेड लिस्ट जो है, जो मैक्स हीप वाली लिस्ट है वो हम पास करेंगे, सो दैट इट विल सॉर्ट द होल लिस्ट। सो हाउ इट विल डू, ये सबसे पहले उसकी लेंथ निकाल लेगा, माई लिस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आप देख रहे हैं जो लास्ट वाला एलिमेंट था, पहले तो हमने इसे स्वैप करना है, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप करना है, और बाकी हुई बची हुई लिस्ट को हमने दोबारा से हिपिफाई करना है, ठीक है। सो हाउ विल आई राइट दिस, बिकॉज ये एवरी टाइम आई विल बी डूइंग इट, तो कितनी बार करना है ये, सो आई विल क्रिएट अ लूप फॉर आई इन रेंज, लास्ट एलिमेंट से चलना है हमें, n-1 से चलेंगे, ठीक है, और 0 से पहले ही खत्म कर देंगे हम, कॉमा -1 डिक्रीज करते हुए चलेंगे n-1 को। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को, जो माई लिस्ट है, माई लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको स्वैप कर देंगे ith एलिमेंट के साथ। आई क्या है हमारा, n-1, यहाँ माई लिस्ट ऑफ 0 क्या था, ये 20 आना चाहिए इसमें, है ना। तो माई लिस्ट ऑफ n-, इसमें i लिखेंगे हम, ith एलिमेंट, जो फर्स्ट टाइम तो n-1 के साथ रिप्लेस होगा ना, हम यहाँ लिख देंगे इसे माई लिस्ट
of I comma my list of 0. ठीक है, तो first we swap and after this is swap we will do what? We will heapify it. Will be heapify calling the function again. swap करने के बाद दोबारा से अब चलाएंगे, लेकिन अब जब हम चलाएंगे इसे, अब हम क्या करेंगे? अब जब heapify करना है, ठीक है, इसको पास करेंगे. अब हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट टाइम तो जितने एलिमेंट्स हैं n-1 एलिमेंट्स हैं, मतलब एक कम एलिमेंट है हमारा, ठीक है. अब हमारे पास यहां पर मैंने क्या पास करना है? I पास करना है. फर्स्ट टाइम ये n के लिए चला था heapify, n was your length, n was your length. और अभी हम क्या करेंगे? I की वैल्यू n-1 से है, तो ये n-1 के लिए चलेगा. लास्ट एलिमेंट 20 छोड़ देंगे आप, ठीक है. और ये कहां से इसको हिपीफाई करना है हमें? एवरी टाइम विल बी डूइंग व्हाट? क्योंकि ये एलिमेंट अब हमारा, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और अभी हमें क्या किया? मैंने 20 को स्वैप कर दिया लास्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है. जब 20 को मैंने लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप किया, दैट मीन्स आई डिड व्हाट? I swap this element with this, means यहां पर आ गया 1 और यहां पर आ गया 20. और अब मुझे 20 को तो छेड़ना ही नहीं है, यानी इसको तो मैं अलग ही कर दूंगा, ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है. अब मुझे चलना ही 2 से है, तो मुझे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मुझे फर्क कहां पड़ता है? इस एलिमेंट से. फर्स्ट के साथ स्वैप हुआ ना, अब जैसे यहां 1 आया तो ये डिसबैलेंस हो गया ना, ये डिसबैलेंस हो गया रूट. अब मैं रूट को हिपीफाई करूंगा. I'll be हिपीफाई रूट. तो ये 0 जहां पर आया है, यानी 1 जहां पर आया है, तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट है वो टॉप पर जाएगा और ये 1 नीचे चला जाएगा. और फिर जब 1 नीचे आएगा तो आपको पता है फिर वो भी हिपीफाई होगा, ठीक है. जब यहां पर 15 आएगा तो 1 जाएगा, और 1 जाते जाते ये भी डिसबैलेंस कर देगा, और फिर 10 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, ये भी डिसबैलेंस हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा. तो इट विल बी लाइक दिस, राइट. सो हमें क्या करना है? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट के साथ 0th एलिमेंट के साथ ith को स्वैप किया है, तो 0th एलिमेंट को मुझे हिपीफाई करना पड़ेगा दोबारा से, टॉप एलिमेंट. और वंस आई डू दिस एंड कीप ऑन डूइंग दिस, यू विल सी दैट कि आपका सॉर्ट ही हो गया पूरा एलिमेंट. अब इसमें लेट अस चेक व्हाट इट सेज. लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, it is saying. So why it has given a list out of range? Because we have done what? We have structured this n-1 to 0 comma -1, 0 to I comma 0, and we have hipified my list to I comma 0. It's perfect. And this hipification was done from, okay, this way. यहां पर जब हमने बिल्ड मैक्स ट्री कर रहे हैं, हमें कल मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि जब हम इस ट्री को देखते हैं, इस पूरी लिस्ट में से सबसे पहला एलिमेंट जिसके कोई चाइल्ड है, राइट, ना 1 का कोई चाइल्ड है. इस ट्री को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ना 1 का कोई चाइल्ड है, ना 2 का चाइल्ड है, ना 10 का कोई चाइल्ड है, ना 6 का, ना 8 का. पहला एलिमेंट जो मिलता है हमें जिसके कोई चाइल्ड है, वो मिलता है 5. यानी इनको, ये तो अपनी जगह ऑलरेडी मैक्स हीप कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो इनको तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है. सो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. एंड व्हाट इज दिस? इसका इंडेक्स क्या है इस एलिमेंट का? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है. दैट मीन्स हमारा टोटल एलिमेंट इसके अंदर है 10, और अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 माइनस 1 कर दूं, तो ये है हमारा एलिमेंट जिससे हमें सॉर्टिंग शुरू, जिससे हमें स्कैनिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसी के ही हैं हमारे पास एलिमेंट्स. इसके अलावा है ही नहीं. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो बाय हाफ ऑफ इट टू. हम हाफ एलिमेंट से भी हिपिफिकेशन शुरू कर सकते हैं. सो वंस वी स्टार्ट फ्रॉम हिपिफाइंग दिस, सो लेट अस सी व्हाट इट डज. और इसको हम कर देते हैं, अब हिपिफाई होगा आपका n से. When we pass on this, and this, what this n would be, your n would be your length of my list.
All this, let us check. It says, it again says there is one error. It is saying index out of range. It is saying, so why it is saying -1 अगर करेंगे हम तो 0th एलिमेंट तो नहीं जा रहा है हमारा, 0 पर जाएंगे तो ये 1 तक चलेगा, ठीक है. It will not go up to 0. So can I go up to 1 -1 here so that it goes from 0 to, and once it is done, can anybody respond to this error? What if you are going with me? Who is there who is going with me? And report where the index should be managed. Is there anybody who can respond? My list of 0 I comma 0. Okay, this actually there is an argument error. I have mistakenly put a hyphen between the variable list, so this was an error. This was an error. So let us see this. Let us check out. This was a variable error that I put it. Yeah, it was a typing error, not exactly any other kind of an error. It was a typing error. So once it is done, so let us see what it has mistakenly done. As let us right now put it from -1, and it has sorted all the elements except the last two. It is able to sort all the elements except the last two. There is one swapping left. There is one swapping left that hasn't been performed. So can it be? Is it due to this one? Because I have not performed this. No, it is also not. So this is perfect. This is perfect. The only one element is left that is unordered, that are the last two elements. So still the whole list has been done in. So the only one comparison is just left out that needs to be carried out. Let us check what this error is. This is list 1. This is my list 1. This is I0. Let us dig out. Let us dig out this one. I goes from n-1 perfect up to the last element. Yes, of course it should do n. Let me check out each and every element after the, even I can show you the element after each duplication. We can print my list here so that you may view all the swappings which have been done right from the top. Right from the top, once this was the whole list, and you can assume that the first swapping was done between 10 and 9. Here it was 9, here it is 10, so 9 was swapped with 10. Right, so this was the first swapping. Next swapping was done between 8 and 7. So this is done 8 and 7, and next swapping was done between 20 and 15. So 20 and 15 was swapped, and once I swapped 15, what it did, it just simplified again. So there is
there is this one, there is one swapping that is left right now. It should have been swapped right here. So 20 must have been swapped with 15 right here. It was not 15 that is meant to be at the last, right? So it should have been swapped like this one. It should have been swapped with 15 should be swapped with 20 and 15 is placed quite fine here. तो ये यहीं पर आना चाहिए था 20 and then 15 होना चाहिए था. Okay, that means there is some hippification error. There is some hippification error. There is one less chance that we are moving in. We are calling this hippification. Let us check out whether we are calling this appropriately for each and every point or not. So this n minus 1 I'm calling, we should call it from n minus 1 is exactly from the last to the 0th element. It is perfect. So this my list I is my list R. Yes, it is also perfect. We are going to do, and hippification is being done for every element n to I, my list comma n to I, and this n is it is perfect. Where it is giving you a problem is just not going at the top, and hippify has been called with this one. Yes, is anybody there to decode this one? My list, am I again writing, making a mistake in typing? Somebody is reporting I have written wrongly my list, but it is corrected right now. It is corrected. There isn't any error in this one. This 15 shouldn't have been there. This 15 shouldn't have been. In fact, let us check out before this heap is sorted. Let us check out the list structure after. Let's print this. So this way, yeah, this is perfect. There is one sort left. Build, yes. This max heap is not perfectly being done. So once I just build the max heap and once I print this list one, it is not perfectly being done. And the reason for this is that means this is not going up to the very first point. So it is going for n minus 1. This is length. It is going from n minus 1 to 0. And it is hippifying each and every node. Yes, it is doing it. After n, the 20 should have been here. After hippification, we should have got this. In fact, we are done. We had already printed this. There is some typing mistake, I think there. Am I there? There is an argument problem by calling build heap. Argument problem. Build max heap. No, there isn't any argument problem. We are passing list one. This is my list. This is my list. Yes, perfect. So we are getting this. It's already true. This is list one. So you write build
Oh, I'm again sorry. Thanks, Amisha. Thanks, Amisha. It is again a typing error. So it is done right now. Now it is 20. Now we can call this build heap. It was only a typing mistake. Generally, it doesn't happen. I should have got my eyes tested. So at the last, you have got your whole list sorted. So this was just a typing error. Thanks for helping me out. So this is again, this was exactly your heapification, your heap sort. I hope you have got that. And in fact, if we just make little bit change into it, let's create a minimum heap. मैं अब ज़्यादा change नहीं करूँगा, सिर्फ एक minimum heap बनाएं. अगर हम minimum heap बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ minimum heap की condition रखनी है. और आप देखेंगे क्या हो जाएगा. Maximum heap में root की value left और right से बड़ी रहती है, और minimum heap में root की value left और right से छोटी रहती है. So हम उल्टा स्वैप करते हैं. यानी अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ जब हम हिपिफाई कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि ith एलिमेंट अगर बड़ा है, ठीक है, ith एलिमेंट अगर बड़ा है लेफ्ट से, तो ये LAR को मैं LAR ही ले रहा हूं, बट ये अब LAR में मिनिमम वैल्यू आने वाली है. ठीक है, तो अगर मैं ये कंडीशन यहां पर सिर्फ उल्टी कर दूं कि अब मैं चेक कर रहा हूं कि जब टॉप वाला एलिमेंट बड़ा है, ith एलिमेंट अगर बड़ा है लेफ्ट से, तो स्वैप हो. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो लार्जेस्ट है वो हमारा मिनिमम बनेगा. ठीक है, सिर्फ इतनी कंडीशन चेंज करनी है, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, एवरीथिंग इज द सेम वन. दिस हिपिफिकेशन प्रोसेस इज जस्ट कंटेनिंग व्हाट, इट इज कंटेनिंग a minimum heap rather than creating a maximum heap. It is creating a minimum heap. बाकी किसी प्रोसेस में मैं कोई चेंज नहीं करता हूं. So just see that कि ये बिल्ड जो मैक्स हीप हो रहा है, ये मिनिमम हीपिफिकेशन के बाद हो रहा है. So let's see the output. अगर इसको एक बार करके देखते हैं, तो what does it print? Let us run this, and you will see that this is not doing in this way. अब मिनिमम हीपिफिकेशन के बाद अब हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं, इसको बीच वाला एक पर प्रिंट हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला. Yes. So what we are doing is, जब हमारा एलिमेंट जो है वो मिनिमम के साथ स्वैप हो रहा है, और हमारे पास हम मिनिमम वाले एलिमेंट को ही हिपिफाई करते हुए चल रहे हैं, बाकी सब काम वैसे ही हो रहा है. सो इफ आई डू इट, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास अब सॉर्टेड हुआ नहीं. सो माई क्वेश्चन टू यू इज राइट नाउ कि मिनिमम हीप बनाना तो मैंने आपको बता दिया है. मिनिमम हीप कैसे बनेगा, मैं इसको छोटा सा यहाँ से हीप सोर्ट को छोड़ देता हूँ, और आप इस ट्री को अगर प्रिंट करेंगे तो आपको ये मिनिमम हीप वाला लिस्ट देगा. इतना प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है. नाउ इफ यू प्रिंट दिस ट्री 9, 10, 7 एंड देन 15, 1, 8, 6, 20 to 15, अगर हम इस तरह से इसको स्कैन करेंगे और एक मिनिमम हीप बना लेंगे, सो क्या मेरे पास एलिमेंट आना चाहिए. बेसिकली आई टेल यू व्हाट शुड हैव हैपेंड. आपको ये ट्राई करना है मिनिमम हीप से, और आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलना क्या चाहिए, यू शुड हैव अ लिस्ट गॉट इनटू अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो आपको ये सारा प्रोसेस जो हीप सॉर्टिंग का है, जस्ट हम मिनिमम सॉर्ट से जब इसको रिप्लेस करेंगे, यू शुड गेट अ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट, राइट. तो ये आपका आउटपुट होना चाहिए. आई होप यू विल ट्राई दिस, एंड थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा इसके अंदर, एंड यू विल आल्सो यूज योर ओन ब्रेन्स टू कम आउट विद अनदर लॉजिक टू क्रिएट अ मिनिमम हीप आउट ऑफ, एंड क्रिएटिंग ए सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द मिनिमम हीप, जहां पर हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट पहुंचेगा. यू विल फाइंड 1 एट द टॉप. ये जो यहाँ पर 9 मिल रहा है, यहाँ ये 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 1 पहुंचना चाहिए. 9 की जगह पर जब हम एक पूरा मिनिमम हीप ट्री बना लेते हैं, वी शुड हैव द मिनिमम एलिमेंट एट द टॉप. तो ये मिलना चाहिए आपको. ठीक है, तो इसके लिए आपने देखना है क्या करना है. तो आई विल टीच यू आफ्टर दैट. जब देखेंगे इसको, आप अगर बना पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाएंगे तो हम इसको दोबारा से बनाएंगे कभी. आई विल टेल यू हाउ इट इज डन. लेट अस कम बैक टू योर क्विक सॉर्ट. क्विक सॉर्ट में मैंने आपको बताया था, इट इज जस्ट लाइक अ सॉर्टिंग मेथड व्हिच इज अ डिवाइड एंड कंकर मेथड. ठीक है, डिवाइड एंड कंकर मींस इट वाज डूइंग व्हाट, ये आप कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराऊंगा. पिछली बार आपको याद होगा जब हमने पार्टीशनिंग की थी एक लिस्ट की,
डिवाइड किया था लिस्ट को, लेट मी राइट द लिस्ट फर्स्ट, इसी लिस्ट को लिख लेते हैं पहले, 15 20 15 20 7 9 5 8 7 9 5 and 8 and then it is 6 10 to 1 6 10 to 1. अगर ये हमारे पास लिस्ट है तो what objective of my quick sort is to divide this list into two halves so that we could get a point in between जिसको हम बोलते हैं pivot point. We should get a pivot point which divides the list into two halves. So all the less elements जो इससे छोटे elements हैं वो सारे pivot से नीचे होने चाहिए और pivot से बड़े element उसके right side में होने चाहिए. So how do we get that particular element कि जो एलिमेंट ऐसा कौन सा पोजीशन हम बना दें जो इस पूरी लिस्ट को दो पोर्शंस में डिवाइड कर दे, दो सब लिस्ट में डिवाइड कर दे, जो दोनों सब लिस्ट अपने आप में अनसॉर्टेड होंगी लेकिन वो मिड वाले एलिमेंट से लेफ्ट वाली जो लिस्ट होगी वो छोटी होगी और राइट वाली उससे बड़ी होगी. सो हाउ डू वी एक्चुअली अचीव दिस पर्टिकुलर टास्क? तो मैंने आपको बताया था वी हैड द प्रिविलेज टू चूज एन एलिमेंट एज अ पिवट. तो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में लेफ्ट साइड को हमने पिवट लिया था, हमने लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को पिवट एलिमेंट लिया था और इसको हम कंपेयर कर रहे थे और हमने लेफ्ट इसको मान लिया था और राइट इसको एज्यूम कर लिया था एंड वी वर एक्चुअली कंपेयरिंग दिस पिवट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट. आज हम डिफरेंट तरह से करेंगे. जिन स्टूडेंट्स ने लेफ्ट से किया था आज हम एक दूसरा फ्लेवर से देखते हैं. तो लॉजिक वही रहेगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, but we will be choosing a rightmost element as a pivot this time, right? So let us choose this point as a pivot instead of, so this is my pivot. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट एलिमेंट इसको पिक कर लेते हैं, राइट इसको ले लेते हैं और हम पिवट एलिमेंट को लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करते हैं जब तक इससे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता. सो जैसे ही हम इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढते हैं, राइट, ये हम जैसे ही कोई इससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता तो हमें पहला ही एलिमेंट बड़ा मिल गया तो हम यहां स्टॉप कर जाते हैं. सो लेफ्ट वहीं पिक हो जाएगा. फिर हम इसी पिवट एलिमेंट को इधर से चेक करना शुरू करते हैं जब इससे कोई, जैसे ही कोई इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता. ठीक है, अब आप देखेंगे इससे कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिला, राइट, तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे. जैसे आप इधर से बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई भी छोटा एलिमेंट इससे आपको नहीं नजर आ रहा है तो पहली बार में लेफ्ट ये भी यहीं तक रुक गया है और ये भी यहीं रुक गया है. तो ये लिस्ट ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा इसको समझने के लिए. सो व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट ले लेता हूँ सो दैट आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि ये पहली ही इटरेशन में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है. सो लेट मी अज्यूम इट, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा 15 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं और 9 7 8 5 और 10 1 2 6 ऐसा ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं और हमारा ये 6 पिवट बन जाएगा. तो ये एली है हमारा लेफ्ट पोर्शन है और ये हमारा राइट पोर्शन है. तो हम यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं जैसे इससे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता. तो लेफ्ट तो यही बड़ा मिल गया, पहला वाला ही, तो यही स्टॉप कर देते हैं. राइट जो है वो यहां से कंपेयर करना शुरू करते हैं जैसे इससे कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता. तो हमें 2 ही यहीं के यहीं मिल गया. तो हम L को R से कंपेयर करते हैं. कंपेयर क्या करते हैं, इसको स्वैप कर देते हैं. सो फर्स्ट वी पिक आउट एन एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट टिल वी गेट एन एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन द पिवट. तो वी स्टॉप हियर. राइट से कंपेयर करते हैं जब तक इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, तो यही स्टॉप कर गए. फिर हम चेक करते हैं अगर L की वैल्यू R से छोटी है, दैट मींस ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सो वी स्वैप L एंड R. हम क्या कर देंगे, इस एलिमेंट के बाद क्या होगा, 2 यहां आ जाएगा, 20 9 7 8 5 10 1 एंड 15 यहां आ जाएगा और 6 यहीं आ जाएगा. तो ये तो पिवट ही रहेगा. फिर से यही प्रोसेस सब चलेंगे. अब देखते हैं कि जैसे ही लेफ्ट से इससे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता तो यहां पर आ जाएगा. ठीक है, L यहां पर आ जाएगा और इधर से हम मूव करना शुरू करते हैं. जैसे इससे कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिलता तो अब R यहां पर मिल गया.
फिर से इन्हें स्वैप कर देंगे। अभी भी L R से छोटा है तो हम 2 यहां ले आते हैं, 1 यहां पर, 9 7 8 5 10 और 20 यहां आ जाता है, 15 और 6। अब धीरे धीरे देख रहे हैं बड़े एलिमेंट इधर आ रहे हैं। फिर से पिवट को कंपेयर करते हैं, जैसे ही इससे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, अब L यहां पिक करेगा और इधर से पिक करते हैं जब तक इससे कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिलता। तो आप देख रहे हैं R यहां पर आ गया। अब देख रहे हैं धीरे धीरे R इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, L भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जब तक ये L इससे छोटा रहेगा, विल कीप ऑन स्वैपिंग L विद R। तो अब यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 5 आएगा और यहां पर 9 आ जाएगा। सो लेट मी राइट इट 5 एंड 9 हियर। फिर से इसी को कंपेयर करते हैं। अब 6 से बड़ा एलिमेंट कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। अब ये L बन जाएगा और इससे छोटा एलिमेंट कहां मिलेगा, नाउ यू विल गेट छोटा एलिमेंट राइट हियर। अब R जो है वो यहां पर मिला। नाउ L क्रॉस करके इधर आ गया, R क्रॉस करके इधर आ गया। जो हम इधर से चल रहे थे तो 6 से छोटा एलिमेंट हमें यहां मिला, R को माइनस करते गए और R यहां पर था। सो नाउ दैट विल डू व्हाट, अब हम इस लूप से बाहर आएंगे। अब हमारे पास ये वाला एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। वी विल स्वैप 6 विद द लेफ्ट एलिमेंट। यहां हमारे पास लेफ्ट ये मिलेगा हमें मिड, तो हम यहां पर 6 करेंगे, ठीक है, और यहां पर कर देंगे 7 और योर लिस्ट विल बी एक्चुअली बी मिड बाय दिस। तो आप देखेंगे इससे छोटे एलिमेंट सारे इधर आ गए और बड़े एलिमेंट सारे इधर आ गए। सो यही प्रोसेस बार बार करते जाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब पार्टीशन हो गया, यू हैव गॉट द मिड एलिमेंट। नाउ यू विल पार्टीशन दिस लिस्ट इन द सेम वे, यू विल पार्टीशन दिस लिस्ट इन द सेम वे। हमें हमेशा हर बार पार्टीशनिंग में एक एक एलिमेंट अपनी जगह पर मिलता जाएगा और फिर हम लेफ्ट को और राइट को दोनों को पार्टीशन करते हुए चलेंगे। दैट मींस दिस quicksort is basically a division kind of a technique. We keep on partitioning and partitioning and partitioning. So this partition logic मैं फटाफट बना देता हूँ। आपने बनाया हुआ है पहले, मैं फटाफट आपको दोबारा से बना देता हूँ। लेकिन इस बार हम पार्टीशन करेंगे। सपोज मेरी लिस्ट है, सपोज A, उसको हम एलिमेंट पास करेंगे फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट का और एंड पास करेंगे एंडिंग एलिमेंट का इंडेक्स है। तो हम अब पिवट किसको बनाएंगे, पिछली बार हमने पिवट बनाया था A ऑफ स्टार्ट को, इस बार बना देंगे A ऑफ एंड। और लेफ्ट एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेफ्ट हो जाएगा हमारा स्टार्ट जहां से चलना है और राइट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एंड -1। लेंथ -1 लेते हैं ना, सो हम लेंथ -1 ले लेते हैं, एंड -1 ले लेते हैं। और अब हम कब तक चलेंगे, आपको मैंने दिखाया, जब तक जो लेफ्ट है हमारा वो लेस देन इक्वल टू राइट रहेगा, तब तक हम करते रहेंगे। क्या, अब हम पहले पिवट को लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, व्हाइल योर A ऑफ लेफ्ट, जब तक लेफ्ट एलिमेंट पिवट से छोटा है, जब तक ये छोटा है, A ऑफ लेफ्ट यहां ऐसे लिखेंगे, व्हाइल इट इज लेस देन पिवट। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि जो लेफ्ट एलिमेंट है, लेफ्ट को तो बढ़ाते रहना ना हमें, तो यहां पर पहले मैं बता देता हूं आपको। पहले हम क्या करेंगे, जब तक ये छोटा है, लेफ्ट को क्या करना था हमें, लेफ्ट को आगे बढ़ाना था। लेकिन ये लेफ्ट बढ़ते बढ़ते कहां बाहर ना निकल जाए, तो एक कंडीशन और भी देनी है हमें, लेफ्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू हमारा एंड होना चाहिए, ठीक है, लेस देन एंड होना चाहिए, एंड तो हमारा क्रॉस कर जाएगा ना। और फिर से हम क्या करेंगे, ये तो हमें लेफ्ट मिल जाएगा जब तक पिवट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, और फिर हम राइट से स्कैनिंग शुरू करेंगे, व्हाइल A ऑफ राइट, जब तक राइट एलिमेंट जो है वो बड़ा है, ठीक है, किससे, पिवट से, यानी हमें पिवट से छोटा एलिमेंट चाहिए। और इसमें भी हम, क्योंकि हम राइट को माइनस करते चलेंगे, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट के बराबर ही होना चाहिए। और फिर हम राइट को कर देंगे -1, ठीक है। यहां तक लास्ट टाइम भी हमने किया था पार्टीशन ऐसे। और फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो लेफ्ट था, अगर तो वो राइट से छोटा है, ठीक है, कई बार छोटा हो रहा था ना, दे वर अप्रोचिंग, लेफ्ट वाज अप्रोचिंग राइट, सो हम A ऑफ लेफ्ट को स्वैप कर देंगे किससे, A ऑफ राइट के साथ, A ऑफ राइट विद A ऑफ
लेफ्ट, और जब ये वाइल करता रहेगा, इट विल गो अप टू जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, इट विल कीप ऑन टू स्वैपिंग जब तक ये एलिमेंट लेफ्ट मिलेगा, फिर राइट मिलेगा, और फिर लेफ्ट और राइट से छोटा होगा तो हम स्वैप करते चलेंगे लेफ्ट और राइट को। जब ये लेफ्ट इसे क्रॉस कर जाएगा और राइट क्रॉस कर जाएगा लेफ्ट से, दैट मीन्स मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, तब मैंने लेफ्ट एलिमेंट को स्वैप कर देना है। ए ऑफ लेफ्ट should be swapped with your end element, ठीक है, लास्ट एलिमेंट, क्योंकि हमारा पिवट था ना ये, दिस इज अवर पिवट, सो ए ऑफ लेफ्ट विल बी स्वैप्ड विद दिस। वंस इट इज डन, योर पार्टीशनिंग विल बी ओवर। और आप क्या करेंगे, पार्टीशन जो इंडेक्स है वो कौन सा था हमारा, लेफ्ट से हमने लेफ्ट को पिवट के साथ स्वैप किया था, तो इस केस में रिटर्न जो होगा हमारा लेफ्ट होगा। आपको याद होगा जो पिछला वाला हमने पार्टीशन किया था वो हमने लेफ्ट से शुरू करा था, तो हमने राइट वाले को रिटर्न किया था। नाउ दैट विल बी रिटर्निंग लेफ्ट। सो इन केस आप यही लिस्ट ले लेते हैं जिसको अभी हमने हीप सॉर्ट किया था, तो अगर हम इसको ही लिस्ट को ले लेते हैं और इस लिस्ट को अब हम क्विक सॉर्ट बनाते हैं, तो क्विक सॉर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फंक्शन लिख लेते हैं, क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में अब आपको क्या करना है, पार्टीशन तो हो गया, लेकिन इस पार्टीशन को आपने बार बार कॉल करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ही ले लेते हैं, क्योंकि अब रिकर्जन शुरू होगा। स्टार्ट से एंड एक फंक्शन बना लेते हैं और बस हम क्या करते जाना है, हमें पार्टीशन करते जाना है और क्विक सॉर्ट बार बार करते जाना है। कब तक करते जाना है, लाइक वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू गेट द मिड बाय कॉलिंग पार्टीशन। पार्टीशन को कॉल कर लेते हैं, इस ए को, इस ए लिस्ट जो भी हम पास करेंगे इसे, उसको हम क्या पास करेंगे, पार्टीशन करेंगे हम स्टार्ट से एंड तक में पार्टीशन करेंगे, हमें मिड एलिमेंट मिल जाएगा। मिड जैसे ही मिलेगा हम क्या करेंगे, इसी क्विक सॉर्ट को अब हमने 2 बार कॉल करना, ठीक है। एक बार तो कॉल करेंगे हम स्टार्ट से लेके मिड -1 तक, आपने देख रहे थे यहाँ पर ये एलिमेंट तो हमें मिल गया था, तो हम स्टार्ट से लेके मिड तक इसको क्विक सॉर्ट करेंगे और एक मिड +1 से लेके एंड तक हम उसे स्वैप करेंगे और क्विक सॉर्ट करेंगे। तो वंस फर्स्ट क्विक सॉर्ट विल बी डन फॉर द लेफ्ट सबलिस्ट, लेफ्ट सबलिस्ट शुरू होगी स्टार्ट से मिड -1 तक, दूसरी वाली शुरू कहां से होगी, मिड +1 से शुरू होकर एंड तक जाएगी। सो यू विल बी डूइंग दिस रिकर्जन ऑल द टाइम, बट आपको मालूम है रिकर्जन जब तक कब तक करते रहना है, कंटिन्यूसली नहीं चलेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कब तक चलना है, जब तक आपका स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है। तो इफ यू आर डूइंग दिस वन देन आप क्या करेंगे, आप इसे तब तक करते रहेंगे रिकर्जन जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है। सो वंस इट इज डन, आप अब इस लिस्ट के ऊपर, अब आप इस लिस्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, दिस इज इफ, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस लिस्ट को बनाइए और क्विक सॉर्ट कॉल करिए, क्विक सॉर्ट ऑफ लिस्ट 1, आई थिंक इट शुड बी करेक्ट इफ देयर इज नो टाइपिंग एरर। सो इफ दिस इज डन, अगेन देयर इज क्विक सॉर्ट मिसिंग 2 आर्गुमेंट्स, सो इट नीड्स टू बी पास्ड स्टार्ट एंड एंड। सो स्टार्ट क्या है हमारा 0, ठीक है, और एंड क्या है, एंड है हमारा 9, 0 to 9। So if you pass it like this and print list 1, you will see that you get a sorted list. So quick sort is actually your partitioning. You need to know the partitioning rule only. So ये 2 ही काम करने हैं बस partitioning में। आपको या तो लेफ्ट और राइट एलिमेंट को, राइट लेफ्ट इधर से अप्रोच कर रहा है, राइट इधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट बढ़ता जाएगा, राइट घटता जाएगा, जब तक राइट लेफ्ट को क्रॉस करके लेफ्ट में नहीं आ जाता। तो जैसे ही आएगा तो हम लेफ्ट को एंड वाले एलिमेंट जो हमारा पिवट है उसके साथ स्वैप कर देंगे। जब हमने लास्ट टाइम किया था, जब पहले वाले एलिमेंट को हमने पिवट माना था, तब हमने पिवट को राइट एलिमेंट के साथ, राइट जहां तक रहा था उसके साथ हमने स्वैप किया था। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो, बस इतना सा चेंज करना है। एंड वंस यू आर एबल टू पार्टीशन योर लिस्ट and you get your mid element,
बस अब आपको क्विक सॉर्ट पिछली वाली लिस्ट और सेकंड वाली लिस्ट को आपने स्वैप करना है। सो यू विल बी डूइंग दिस। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों एल्गोरिथम्स को देखें तो ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है, राइट। इस लिस्ट को अगर आप एलिमेंट बाय एलिमेंट देखें तो मैंने आपको 2 डायमेंशनल लिस्ट भी बताई हुई है। सो अगर आप इसे प्रिंट इस तरह से करके देखते हैं तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखा देता है दैट आपकी लिस्ट जो है 2 डायमेंशनल लिस्ट, उसके अंदर 3 सब लिस्ट है, राइट, इज इट इट। अब क्या मैं इन सारी लिस्ट को इंडिविजुअल एवरी लिस्ट को सॉर्ट कर सकता हूं? सो कैन आई, मैं इसकी इंडिविजुअल लिस्ट के ऊपर अपने, अभी मैंने फंक्शन ऊपर कॉल किया, मैं क्विक सॉर्ट करके दिखा दूं आपको। ये जो आई है ये क्या है? दिस इज लिस्ट। सो कैन आई डू क्विक सॉर्ट लाइक दिस, क्विक सॉर्ट ऑफ आई, बिकॉज आई इज अ लिस्ट। सो इफ यू डू इट, बिकॉज यहाँ पास करना पड़ेगा क्विक सॉर्ट में फिर से वही 0, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 0 1 2 3 4 टू पास एंड। सो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो यू नीड टू डू व्हाट, आपको इसे, इस पूरी लिस्ट को यू नीड टू पास इन, लाइक कैन आई कॉल इट लाइक दिस, और आई इन रेंज लेंथ ऑफ। अब देखिए 2 डायमेंशनल लिस्ट की हर रो को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट 2D। तो अगर आप ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है, अब मेरा एलिमेंट कौन सा है? मेरा एलिमेंट है क्विक सॉर्ट। अब मेरी जो लिस्ट है वो है मेरी लिस्ट 2D ऑफ आई। दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट आई की वैल्यू होगी 0, तो लिस्ट 2D ऑफ 0 क्या है? ये एक लिस्ट थी, उसके अंदर स्टार्ट 0 था, एंड 4 है। सो आई विल बी डूइंग दिस। सो अगर ये ऐसे चलता है, सो इट टेक्स व्हाट, 1 मोर पैरेंथेसिस, और अगर ये होने के बाद एक बार आपने हर रो के लिए इसे क्विक सॉर्ट को चला दिया, सो यू कैन जस्ट प्रिंट दिस लिस्ट अगेन। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ऑफ आई। तो आप देखते हैं आपकी हर रो इंडिविजुअली आपकी सॉर्ट हो चुकी है। सो वंस योर एप्लीकेशन इज रेडी, आप क्विक सॉर्ट के बजाय आप हीप सॉर्ट भी कॉल कर सकते हैं। आप हीप सॉर्ट के लिए आपने देखा, हीप सॉर्ट के लिए हमने क्या फंक्शन था? हीप सॉर्ट के लिए सिर्फ हीप था, हीप सॉर्ट, और सिर्फ उसमें लिस्ट पास करनी है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू हैव हीप सॉर्ट फॉर ईच रो, हीप सॉर्ट, and let us pass list 2D of I। हीप सॉर्ट कॉल करिए और फिर आप देखेंगे तो आपके पास अभी there is a problem that it is showing in। इसको एक बार चला देते हैं। हीप सॉर्ट वाला फंक्शन बन चुका है हमारा, और I actually converted that मिनिमम हीप वाला कंडीशन कर दिया था हमने, तो इसको हम कर देते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। लेट अस कन्वर्ट दैट इनटू, राइट, सो दैट इट इज, सो अगर आप इसे इस तरीके से भी बना देते हैं, I made some changes into this. You make it. That's I am not finding any time in just displaying it. But आप समझ गए होंगे. What I am trying to do is, you know, understand, and you have till now understood this heap sort by using max heap. Min heap आप try करेंगे अपने आप, और हम उसका एक छोटा सा लॉजिक कल भी देख लेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो कल हम min heap का sorting algorithm को आपको मैं बता दूंगा। Otherwise, I hope that you will be able to do that once you understand this. ठीक है, quick sort you have seen. Tomorrow will be a lecture when we'll be studying write your 2-dimensional operations over a 2-dimensional list, जिसको हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस बोलते हैं। अब हम कल से डिसिफर करना शुरू करेंगे एक्सप्लिसिटली 2-dimensional लिस्ट को। इवन हम सॉर्टिंग भी देखेंगे, जैसे हम अभी सॉर्ट कर रहे थे, अभी हम कॉलम्स को सॉर्ट कर रहे हैं। सो we'll be seeing how can I sort each and every column of a particular list or not. So we'll be seeing how the columns can be extracted and we can sort them individually. ठीक है, तो इनके operations को भी कल हम देखेंगे। So this was about today's lecture.
Let me check out in case there are certain students who are having certain questions. So in case there are students who want to leave, they can leave. The students having questions, they can still there. So is there any question about your pivot? Nikhil, pivot is an element that you select basically. जिस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, इट कैन बी एनी. आपने देखा मैंने अभी राइट मोस्ट एलिमेंट को पिवट मान के चला था. आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को पिवट ले सकते हैं. इनफैक्ट आप रैंडम एलिमेंट भी ले सकते हैं. एनी एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड एज अ पिवट एलिमेंट. जिस एलिमेंट को आप, जैसे मैंने इस 6 को कंपेयर करना शुरू किया था. आप 6, आपने इसको कंपेयर कर लिया था. 6 को जब मैंने पिवट मान लिया तो मैंने इसे यहां से सारे एलिमेंट से कंपेयर करना शुरू किया और इधर से भी मैंने 6 को कंपेयर करना शुरू किया. यू कैन पिक एनी एलिमेंट. इनफैक्ट आप इसको पिवट मान सकते हैं. आप 7 को, 8 को, किसी को भी पिवट मान के आप पहले लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करो, फिर राइट से करना शुरू करो. बेटर इट इज कि आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को लें या राइट मोस्ट एलिमेंट को लें, क्योंकि अगर मिड एलिमेंट होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी जब वो खुद से कंपेयर होगा. So it will be creating a different sort of conditions into your brain. But choosing the leftmost element or the rightmost element is the most frequent way of choosing your quick sort. Otherwise, you can take any element. You can take any element as your pivot element. So that is the main element जिसको हम comparison के लिए choose करते हैं. Right? Is it okay, Nikhil? Rupinder, हम इस heap का Rupinder says what's the use of this heap? As you said कि इस heap tree को हमने यूज किया एक नया sorting algorithm बनाने के लिए. It is the method of arranging elements. It's a method of arranging elements of a linear list in a particular order. It can be your increasing order. It can be your decreasing order also. Sparsh, yes, I did not upload a notebook of Python yesterday because this notebook was not complete. Today it is complete and you will be getting both HTML as well as this notebook into your drive because this was not complete yesterday. Na? So we have completed it today. So we will be getting it just after completion of this lecture. I'm putting this. And about, I'm seeing a lot of students are asking about recordings. मैंने ये message आपके host को deliver कर दिया है. And in case my host is there, I request him to just consider the students' request for uploading all the recordings into the drive so that they could have them. So there are many questions about the recordings. You will be getting them. I will ensure that they are they will reach you today only, right? Don't worry about. I will ensure that. Vishal says a pivot point. Okay, might be Vishal, you have missed it. Might be you have missed it. Don't worry. It was a similar way. It was a similar method. आप try कर सकते हैं. In case you find error into that, I can take that way also. और कल मैं आपको इसी हीप सॉर्ट का और इसी क्विक सॉर्ट का दोनों मेथड्स का एक और शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा. Both this heap sort and quick sort will be done in another different way, right? We'll be doing that tomorrow. कल मैं आपको बहुत छोटे से तरीके से दोनों बता दूंगा. I have purposely taken a difficult route to follow so that you could learn better. That's the only reason. Vishal will be doing other sorting algorithms too. Don't worry about. Nothing will be missed. Simran, about project, I'm finding out a day. There are still some students who are missing out, and I promised to them also that I'll be discussing them in their presence. So just that way. It was just that reason I have stopped. I'll be doing that. Rohit, in case the elements are equal to the another one, you do not need to swap them, right?
No need to swap them. So no need to take care of whether the element, if the elements are equal. So अगर top element equal है, root अगर equal है left या right के, उसको as it is छोड़ा जा सकता है, right? That is valid in the maximum condition. Yes, Bhavesh, it's a little bit difficult to understand, but once you will be able to do that, आपको बाकी सारे methods easy लगने लगेंगे. Ankit, we have many methods of sorting, and sorting actually, once you will just mix your hands with sorting, many of your logics will be clear, many. Don't try to go away with your heap or quick in case you are still not able to understand, still try to understand them. I want you all to work over these two algorithms. अगर आपको बबल और सिलेक्शन समझ में भी आ गया है या करना भी है, बट ट्राई द हैंड्स टू, ये आपके फिंगर्स पर होना चाहिए. So let us meet tomorrow. Till then, goodbye.